अच्छा जी, ठीक है। Okay, so we are going to start with the same जो हम last time study कर रहे थे previously, alkyl radicals. I can also share the page with all of you, but more precisely, you can have a look on board as well. मैं board भी आप मेरा जो दूसरा वाला account है उधर से आपको board easily नजर आ सकेगा. So जहाँ पे भी मुझे board की जरूरत होगी, I will use that. Meanwhile, we are going line by line of your book. ठीक है? क्योंकि जहाँ पे भी जो भी structures बनने Okay, so you can see the screen over here. It's page number 67. All of you can open it on your books as well. Elsa, can you please tell me that how an alkyl radical is going to be formed? Helen, let me see. Okay. Yes, Elsa. Okay, so we will take an alkane. For example, if we take methane, its molecular formula is CH4. So we will remove one hydrogen atom, and then alkyl radical will form CH3. And to form its name, we will remove from its alkane name ANE and replace it with YN. So methyl will be Shabash, formed. good. It will be an alkyl radical. Okay. So Elsa just told us that if we have a formula, you can look on the board as well, that it is methane CH4. It is an alkane. ठीक है? अब मैंने आपको last time जो चीजें बताई थी, among that, you know, Elsa, can you see the board? Yes, miss. Okay, ठीक है. Harun बेटे, you can also see the board from the other account. अच्छा, इसमें ऐसे है, देखें, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, and we have categorized into 3. ठीक हो गया? Number 1 is alkane. Number 2 was क्या थी Elsa? What was number 2? क्या थी Elsa? Alkenes. ठीक है? Okay, the first one was alkanes, second is alkenes, and third one is alkyne. Now, among these 3 categories, only alkane are saturated compounds, means they have only one single bond. While alkene has 2 bonds, it is unsaturated, and alkyne has 3 bonds, which is totally unsaturated. जितने double bond होते जाएंगे, that is going to be the unsaturated. Single bond is always saturated. So alkanes are saturated hydrocarbons. इनका general formula हमने study किया था, CnH2n plus 2. Harun, you are not connecting yet. Elsa, what was the general formula for alkenes? Elsa, what is the general formula for alkenes? Elsa, can you hear me, bete? Yes, miss. What is the general formula of alkene? CnH2n. Yeah, it's CnH2n. And for alkyne? CnH2n minus N. -2, not N. minus 2. ठीक है, ये मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिख दी हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है 3 टाइप्स में. अमंग दैट फर्स्ट इज alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes are known as saturated hydrocarbons because they have only single bond और उसकी वैलेंसी हर तरीके से सेटिस्फाइड रहती है. जस्ट लेट्स से अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट अल्कीन, तो वहां पर कुछ और केस होगा, मींस वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स निकाल लिए जाएंगे. रीजन बिहाइंड इज कि वहां पे डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है,
अब जैसे जैसे आगे आगे स्टडी करेंगे यू विल केम टू नो, एंड द सेम केस विद एल्काइन, ओवर देयर इज 3 ट्रिपल बॉन्ड, और वहां पे जो पहला मिथाइल का स्ट्रक्चर, मिथाइलिन का या इथाइलिन का स्ट्रक्चर होगा वो टोटली इस तरह से होगा, ये देखें लाइक दिस। ठीक हो गया। सो दिस वाज सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स। अब हम बात कर रहे थे अल्काइल रेडिकल की, दैट हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर गोइंग टू फॉर्म। अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन ये थी, द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स are known as alkyl radicals, means we have methane, the first member of homologous series, we have to minus 1 and it is like this, and it is known as methyl and it is methane। ये देखें ANE को हटा के हमने YL लगा दिया, अल्काइल रेडिकल विल बी फॉर्म्ड। सो यू कैन सी द होल टेबल, ये सारे का सारा टेबल ऐसा ही है। एंड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो टेबल है यू हैव टू डू इट, you have to do it at your home as well। नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अब हम बात करते हैं उसके नीचे जो मैं आपको बता रही थी कि प्रोपेन है तो उसकी डिफरेंट डायरेक्शन सब्स्टिट्यूट हुई है। लाइक अगर मैं यू आल्सो हैव टू फॉलो द बोर्ड एज वेल, कि आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होता रहे। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोपेन की, प्रोपेन का जी हमारे पास फॉर्मूला है C3H6, इट इज प्रोपेन। ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, ये देखें 1 में 2 C3H8 है। ओ सॉरी, ठीक है, C3H8 we are going to write down the formula। C के कार्बन के 3 एटम्स हो गए, we have to place hydrogen 3 और 3 6, remaining 2 over here। this is normal propane। normal propane जो straight chain formula है, ये N is for normal propane लिखते हैं most probably, लिखते हैं well and good, नहीं लिखते तो not an issue। अब आप अगर इसकी रिमूवल करते हो, अब ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके टर्मिनल से अगर आप इनकी रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन एटम्स की, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल प्रोफाइल आएगा। मींस ये देखें CH3 CH2 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम अगर चला जाए तो ये अल्काइल रेडिकल बन जाएगा और हम इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपेन की जगह प्रोपाइल आ गया, लेकिन हमने टर्मिनल का, टर्मिनल जो शुरू में होता है या एंड पे कह लें, चाहे आप इधर से हटा लें इधर से हटा लें, सेम बात है दोनों की। ठीक है, सो इट इज नोन एज नॉर्मल प्रोपाइल। अब हमने पीछे एक स्ट्रक्चर पढ़ा था आइसोप्रोपाइल का, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वाज डूइंग द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम उसमें उसमें क्या है कि अगर हम ये सेंटर वाला जो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बनेगी फॉर्मेशन, CH3CH3। तो इसको हम बोलेंगे आइसो, जो सेंटर में जैसे ये स्ट्रक्चर है यू, हो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद द मार्कर्स। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज आइसो, जहां ऊपर नीचे हाइड्रोजन एटम प्लेस किए हो। जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी दैट इज समथिंग एल्स। आइसो मींस जब ऊपर नीचे ब्रांच चेन बनाई हो। ठीक है, अब देखें ये CH2 है ना, तो हम एक को अगर हम रिप्लेस कर दें, दूसरा ना लिखें, तो स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3CH3, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप H को ऊपर लिख दें। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, फ्रॉम द नेम आइसोप्रोपेन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोपेन, उसके हम डिफरेंट फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। आइदर वी कैन गो टुवर्ड्स ब्रांच्ड, आइदर वी कैन गो टुवर्ड्स द स्ट्रेट चेन। अगर हम स्ट्रेट चेन से टर्मिनल का हाइड्रोजन हटाएंगे we will get normal profile, and if we go to replace the substitute the second center one from the central hydrogen atom, we will get isopropyl, because the structure is isopropane and hence the name is given isopropyl। ठीक है, now coming towards
यहाँ तक अगर कोई इशू है, फातिमा, हारून एंड एल्सा, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. No, miss. फातिमा, any confusion till here, bete? No, miss. Okay. Haroon, what about you? You are not getting connected to audio. So this one is known as क्या आप उसको कह लो, इसकी किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, राइट? अगर मैं आपको कोई और फॉर्मूला दूं, यू विल बी एबल टू राइट डाउन दैट. लाइक अगर मैं ब्यूटेन की एग्जांपल आपको देती हूँ C4H10, देन यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मेक द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के आप उसका टर्मिनल का हटाएंगे, एक कार्बन हाइड्रोजन आगे फर्दर ऐड कर देंगे, एंड दैट चेन इज गोइंग टू बी नॉर्मल ब्यूटाइल. ठीक है. अब there are different structures of butyl radicals. You can see it on your book as well. I can make it for your convenience as well. सबसे पहले आप उसका ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे, that what is the formula of butane. So what's the formula of butane, Elsa? C4H10. C4H10. So 1, 2, 3, 4. H3C भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है. Both are correct. 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. This is the structure of butane. Now अगर हमने इसका देखें, दो तरीके हैं लिखने के. अगर हम इसका टर्मिनल का हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2 एंड दिस लाइन. ये लाइन मिस नहीं करनी, इट्स इम्पोर्टेंट. नॉर्मल ब्यूटाइल. और अगर हम उसका आइसोप्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर, जो आइसोब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर CH2, CH3, it is isobutyl because इसका center वाला hydrogen atom is going to be removed, so it is going to be isobutyl or secondary butyl is more precise word हम इसको बोलेंगे. Why it is secondary? Anybody has idea? Also, any idea about that? Secondary क्यों बोल रहे हैं हम इसको? Because उसकी जो स्ट्रेट चेन है उसमें से जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है उसको हमने आइसोब्यूटेन बनाया, मतलब कि अलग किया, उसमें से एक हाइड्रोजन अलग किया. नहीं 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 नहीं, थोड़ी बहुत आपकी बात ठीक है, लेकिन वर्ड्स पे अपने अगर आप गौर करें, यू हैव सेड कि हमने उसका सेकंड वाला हाइड्रोजन हटाया है. हमने हटाना सेकंड वाला हाइड्रोजन है, हमने इसका क्यों नहीं रिमूव किया दूसरे वाले का? वो भी तो सेंटर में है. व्हाई वी आर कंसर्न विद दैट वन, फर्स्ट वन? एनी आइडिया? नहीं, ऐसा नो आइडिया बेटे. नो आइडिया एल्सा? नो मिस, मैं तो खुद आपसे क्वेश्चन करना था. चले मैं आपको अब बताती हूँ. अच्छा जी, हाँ जी. अब देखें, जैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना, तो हम लोगों ने उनकी नेमिंग के लिए एक नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं नेम देना. तो उसके लिए एक ना रूल्स कुछ फॉलो किए जाते हैं. उन रूल्स में से सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हमने स्टार्ट करनी है ना नंबरिंग देना कार्बन एटम्स को, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है. ठीक है. फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम आवर राइट साइड, वी कैन से कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4. ठीक है. तो अब जब हम इसको नेमिंग दे रहे हैं ना इस तरह से, और जब मैंने आपको कहा कि आपने टर्मिनल का हाइड्रोजन एटम हटाना है, तो आप यहाँ से नहीं हटा सकते. यू हैव टू मेक अल्काइल रेडिकल फ्रॉम से आपने सबसे पहले हटाना है. ठीक है. तो वो अल्काइल रेडिकल बनेगा. कहने को तो टर्मिनल का ये भी है, टर्मिनल का ये भी है, बट नोमेनक्लेचर को जब हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं नंबरिंग बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो पहला कार्बन एटम जो है वो टर्मिनल पे होगा और उसको हमने जो है वो निकालना है. तो यहाँ से हम टर्मिनल हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल रेडिकल बनता है. अब सेम केस देखें, अब हमारे पास दो एटम्स आगे बीच में, ये देखें 1 और 2. अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो अल्काइल रेडिकल बनाना है हम इस वाले को फॉलो करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डू फ्रॉम हेयर.
हमने इसको जो करना है वो हमने यहाँ से करना है, इस वाले से निकालना है। दिस इज प्राइमरी कार्बन सेंटर वाली एंड दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो हमने सेकेंडरी से निकाला, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हम प्राइमरी से निकालते हैं वी कैन से प्राइमरी ब्यूटाइल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। क्लियर है एल्सा? यस मिस। चलें ठीक है, वी आर मूविंग ऑन। जी बेटा जी बताएं। मिस अगर हम प्राइमरी वाले हाइड्रोकार्बन से निकालें तो फिर नीचे लिखेंगे प्राइमरी ब्यूटाइल। प्राइमरी ब्यूटाइल लिखेंगे, लेकिन प्राइमरी ब्यूटाइल बेसिकली बनता नहीं है। जो ज्यादा टेंडेंसी है कार्बन एटम की कि वो अपना जो हाइड्रोजन एटम लूज करता है, उसको डिफरेंट आगे ना फर्दर स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं, जिसमें मतलब ये तो बड़ा ये अनयूजुअल सी बात लगती है कि कैसे साइंटिस्ट ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक पूरी फील्ड है ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया जाता है कौन सा हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है। तो जो ज्यादा प्रिसाइज वे है और जो रिजल्ट पे पहुंचते हैं वो यही है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल में टेंडेंसी है तो वो जल्दी लूज करता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। सो आपने सेकेंडरी ही लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे नाउ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ आइसोब्यूटेन एज वेल। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि ऑन योर बुक आइसोब्यूटेन में आप रिमूव कर सकते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, तो वहां पे आइसोब्यूटाइल फॉर्म होगा और टर्शरी ब्यूटाइल आल्सो फॉर्म। टर्शरी मींस तीसरे नंबर का कार्बन एटम। मतलब एक चीज है उसको डिफरेंट तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल बना हुआ है मैं बना देती हूँ इधर, CH3 C 2 3। तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल इसलिए कह रहे हैं कि तीसरे कार्बन पे इसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है। ये चीजें आपको ज्यादा वक्त के साथ क्लियर होंगी कि जब आप नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 68, ऑल ऑफ यू कैन मूव ऑन दैट पेज 68। अच्छा जी, it is functional groups. What did I tell you about functional group? Who is going to tell me? Harun, can you please tell me? Harun Naveed, unmute yourself and tell me what is functional group. I have told you one thing, important thing about functional group. Harun, can you hear me bete? Fatma, you tell me. मिस डेफिनेशन बतानी है। नहीं, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट? नहीं पता? नो मिस। ओके, एल्सा एनी आइडिया बेटे? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसकी प्रेजेंस में पता लगता है कि इस केमिकल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप्स। जब हमने स्टार्ट किया था ये हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग का चैप्टर, देन आई हैव टोल्ड यू कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमें बताता है दैट हाउ आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। लाइक एल्केन की बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं आगे आपको पता लगता जाएगा, OH ग्रुप अगर किसी में है तो उसकी सम हाउ प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही कैटेगरी में फॉलो आउट करेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स or presence of double or triple bond which determine the characteristic properties of an organic compound is known many times in the exams में आगे एसिड वगैरह में प्रेजेंट होता है। so it is either a group of atoms or presence of double bond। देखें यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, OH में सिंगल बॉन्ड है। so it is also dependent on double or triple bond which determines the characteristic properties of an organic compound is known as the functional group। so this was the definition। then the remaining part of the molecule mainly determines the physical properties such as melting point। अब let's say I have told you कि ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ये देखें, ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसके ऊपर अगर मैं OH ग्रुप प्लेस कर देती हूँ तो क्या होगा? ये जो OH ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है
और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनोल, जो कि यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इस OH ग्रुप की वजह से है, फंक्शनल ग्रुप की, लेकिन ये जो रिमेनिंग बेंजीन का पोर्शन है इट इज गोइंग टू बी डिटरमिन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, व्हाट आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाट इज डेंसिटी एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, Yes, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जी बेटे, आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेटे मेरी वीडियो ना, इफ यू गो ऑन द पार्टिसिपेंट्स यू हैव, तो वहां पे जो वीडियोस हैं उनमें होगी, देखें। आई नजर एल्सा फ्रॉम वेयर आई एम होस्ट? आइए नजर। यस मिस आ गई। क्या ये मैं आपको बता रही थी, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए ये OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ये जो जिस चीज के ऊपर लगा हुआ है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH लगा देंगे आप तो फिनोल है। फिनोल की जो प्रॉपर्टी है वो एंटीसेप्टिक एजेंट है, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, जिसको फिनाइल भी बोलते हो आप लोग घर में जो होती है। OH जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू डिटरमिन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है बेंजीन वो उसकी डिटरमिन करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, now for example OH group is the functional group of alcohols which give characteristic properties, which gives characteristic properties of alcohols. The characteristic properties of carboxylic acids are due to the presence of COOH group। ये जो मैंने बनाया है carboxylic acid, COOH, ठीक है, group in them, therefore functional group of carboxylic acid is COOH। जो carboxylic acid का है so it looks like that। ठीक है, अच्छा जी। So now coming towards functional group containing uh, uh, functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen. Now I'm going to read line by line so that you will able to understand it. The organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen are as functional groups are alcohols, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। अब ये उन्होंने आपको बताया है कि कौन कौन से ग्रुप जो अल्कोहल्स हैं उनमें जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है एज अ फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल में आप देख सकते हो OH है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कैटेगरी विच इज अल्कोहलिक ग्रुप। Now alcoholic group, the functional group of alcohol is OH, इसमें OH लगेगा। ठीक है, their general formula is ROR। आपने जनरल फॉर्मूला इनके याद रखने हैं। where R is an alkyl group, जहाँ पे R जो है वो अल्काइल ग्रुप है। जनरल फॉर्मूला है ROH, मीन्स ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे हम अल्काइल रेडिकल लगा देंगे कोई सा भी, तो दैट लाइक मिथाइल की अगर मैं बात करूँ, मिथाइल है CH3 और दिस इज OH, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल, और ये OH ग्रुप है अल्कोहल का, सो इट इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इट इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू नेमिंग द ग्रुप्स। देन देयर इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होगा तो डेफिनेटली इथाइल को इंट्रोड्यूस करा देंगे, द CH3 CH2OH आ जाएगा। एंड सेम इज केस विद नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, देन क्लियर है बेटे यहाँ तक? यस मिस। ओके, व्हाट अबाउट यू फातिमा? Clear है मिस। ओके, हारून? हारून, बेटे व्हाट नॉनसेंस इट इज।
Haroon has left. ओके चलें जी आगे वाला शुरू करते हैं। लास्ट वाला जो नेक्स्ट लिंकेज है दैट इज ईथर लिंकेज। पहला हमने अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा, अब ईथर में जो है वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा जनाब आर ओ आर, मींस आर ओ आर डैश। यहाँ पे भी रेडिकल लगेगा, यहाँ पे भी रेडिकल लगेगा, और सेंटर में जिसमें तरह ओ होगा दैट इज गोइंग टू बी द ईथर लिंकेज। देयर जनरल फॉर्मूला इज COC where R and R dash are alkyl groups। यहाँ पे भी alkyl group प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी alkyl group प्लेस हो जाएगा, और सेंटर में जो O होगा सराउंडेड किया होगा एटम्स को, that is going to be the ether linkages। Now you can see there is an example of dimethyl ether and ethyl methyl ether and diethyl ether। आप लोग अगर इसको आराम से डाईइथाइल ईथर मींस यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है, एंड डाईमिथाइल ईथर इज जहाँ पे 2 जो हैं वो मिथाइल ग्रुप होंगे। लाइक अगर मैं बात करूं CH3O dimethyl, di means 2, methyl ether। So this is the way we are going to naming the ether linkages। Now if you have any question till here you can ask। Halsa, any question bete? No, miss. इसको कवर करा दूं टॉपिक को, क्या कहते हो आप? वी हैव 7 minutes लेफ्ट, कि इधर तक बहुत है आज? करवा दे मिस कवर। What about you? What do you say, Fatma? टॉपिक कवर करा दूं कि सफिशिएंट है यहाँ तक? करवा दी। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा जी, थर्ड वन इज एल्डिहाइडी ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइडी ग्रुप है उसका जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, उसमें COH प्रेजेंट होगा। ये देखें COOH। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं याद हो सकती चीज आपको, टिल द मोमेंट आप इसको लिखेंगे नहीं बार बार। एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिस वन COOH, जिसमें एक है, एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज RCHO। यहाँ पे R लगा दें, R मींस अल्काइल रेडिकल। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लगाना है, मिथाइल लगाना है, तो आई विल सिंपली प्लेस CH3 एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। आपको सिंपली इसमें फंक्शनल ग्रुप याद रखने की जरूरत है, लाइक ये था उसका, और यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि जनरल फॉर्मूला क्या है। अल्काइल रेडिकल्स आपको सबको क्लियर होने चाहिए कि क्या है, जस्ट सिंपली प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट द नेम। ये फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड इसके जो नेम्स हैं ये कमर्शियल नेम्स हैं। अगर हम वैसे देखें, अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें तो इट विल बी मिथाइलडिहाइड। मिथाइलडिहाइड मिथाइल है ना, ये भी इसका नेम है, एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइलडिहाइड। देन कमिंग टुवर्ड्स पेज नंबर 69, वहां पर आप देख सकते हैं देयर इज कीटोन ग्रुप। कीटोन क्या होता है, जहां पे C ऐसे बॉन्ड हो या ऐसे हो, ठीक है, और यहाँ पर भी अल्काइल रेडिकल आना हो, यहाँ पे भी। जैसे अगर मैं बात करूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। ठीक है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ये एसीटोन का है, जिसको हम डाईमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। देखिए 2 मिथाइल लग गए और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का हो गया, सो इट इज गोइंग टू बी डाईमिथाइल कीटोन। यू कैन मूव ऑन द बुक पेज नंबर नेक्स्ट पेज विच इज 69। तो आपने इसका जनरल फॉर्मूला भी याद करना है। देन देयर इज इथाइल मिथाइल कीटोन, के एक तरफ आप इथाइल लगा दें CH3 CH2 और एक तरफ मिथाइल लगा दें CH3, दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। This is the way we are naming the functional groups। Then there is another category which is carboxyl group, that is COOH। COOH means जैसे carboxylic acid में होता है like this, जैसे एसिटिक एसिड हो गया जिसको हम विनेगर कहते हैं CH3COOH जिसका फॉर्मूला है। देन फॉर्मिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है CHOH। सो ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये उसमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। Then coming towards ester linkages, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। I am just reading, also you can read it।
Interesting information. Perfumes often contain rose oil, which consists of distinct smell-giving organic compound geraniol. Geraniol consists of two functional groups, carbon-carbon double bond, and the hydroxyl group. A sniffing dog can recognize the characteristic smell of human sweat. Each person's sweat contains a unique blend of carboxylic acids. हाँ जी, ये स्निफिंग डॉग्स आपने देखे होंगे, बहुत सी जगहों पर स्निफ कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, दे कैन स्निफ द स्वेटिंग ऑफ ह्यूमंस एंड दे कैन डिटेक्ट इजीली कि ये जैसे अगर किसी जगह पे क्राइम कोई हुआ है, so they are able to find out that who's the person behind that. ठीक है, then coming towards Easter linkages, it is quite important and we will go do it in the next time. Till then यहाँ तक आपका जो काम है, you can do it, learn it by yourself, that what is the definition of functional group, how many different types of functional groups are there, and how we can what is their general formula and how we can categorize with examples. ठीक है, यहाँ तक आपने करना है. Next time we are going to do the table on page number 70 and so on. So if you have any question, you can ask me. Haroon, any question?